Okay, thank you. So amines topic में we have seen the introduction part, what exactly amines are. Amines are organic compound derived from ammonia. का नाम कैसे लिखना है. In today's class, we are going to start with the next topic, that is methods of preparations of amines. In that, first method which we are going to study is from alkyl halide. What is the general representation of alkyl halide? Alkyl halide को आप कैसे represent करते हो? General representation of yes, it is R dash X, right? So the general representation of alkyl halide is R dash X. From alkyl halide, I want to prepare amine. मतलब I want to prepare R dash NH2. अगर ये prepare करना है, right? तो क्या reagent, what reagent can be used in this reaction so that you will get amine? आकांक्षा NH4Cl अगर आप यूज करते हो, do you think reaction होगा? It is a salt, right? Ma'am, ammonia. What can be used? Already this reaction you have seen in topic halogen derivatives. The same reaction. वो तभी आपने यहाँ पे देखा रहेगा preparation sorry reactions of alkyl halides में ये reaction आया था. You're going to react it with NH4. not NH4, it is NH3. That is ammonia in alcoholic condition. Usually this reaction is carried out at 373 Kelvin in a sealed tube. अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या मिला आपको? सी अमोनिया में which is the positive part and which is the negative part? In NH3 positive part कौन सा और negative part कौन सा है? एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा ना, प्लस माइनस. तो इसमें प्लस वाला पार्ट कौन सा है? H plus. Yes, it is H plus. And माइनस वाला पार्ट कौन सा आएगा? NH2. बराबर? This is the minus part. We know it is a nucleophilic substitution reaction. So in this case, in R and X, who is negative and who is positive? R is positive, X is negative. Yes, R is positive, X is negative. So it is a normal nucleophilic substitution reaction. जहाँ पे one nucleophile, that is X minus, is substituted by RNH2. Now see, as you have seen in chlorination of alkane, अगर मीथेन का आप chlorination करते हो, the formula of methane is CH4 plus Cl2 अगर आप करते हो, तो all the 4 hydrogen atoms of methane are identical in nature. तो जब तक सभी hydrogen atoms substitute नहीं होते हैं, the reaction won't stop. Usually, if I'm taking excess, इसके नीचे आया, alkyl halide, you're putting it in excess quantity. So what is going to happen? यहाँ पे primary amine तो आपको मिला first case में, but whether the reaction is going to stop here? No, the reaction is not going to stop here unless and until all the hydrogen atoms of primary amine is substituted by alkyl group. तो अभी second step of the reaction क्या होगा? This primary amine is again going to react with another molecule of alkyl halide. Ma'am, can you please repeat the first step? Hello. Ma'am, can you please repeat the first step? Yes, the first step is, see, alkyl halide.
we know alkyl halide on reacting with ammonia. अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट हो रहा है तो अभी रिएजेंट में एक होता है पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट. दिस यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई. तो पॉजिटिव तो H प्लस ही है, N पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे नेगेटिव, तो इट इज NH2, दैट इज द नेगेटिव पार्ट. इट इज अ नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो द न्यूक्लियोफाइल दैट इज X माइनस will be substituted by NH2 and the compound obtained will be primary amine. Okay. अभी ये क्या होगा कि जब तक एक्सेस कंडीशन यूजुअली अल्काइल हैलाइड के नीचे दे आर प्रोवाइडिंग, अगर ये एक्सेस में लिया तो क्या हो रहा है, ये प्राइमरी अमाइन स्टेज पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा. अभी इसके पास ये 2 और हाइड्रोजन है, अगेन ऑल द हाइड्रोजन्स इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट बाय अल्काइल ग्रुप. तो अभी फिर से सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन. नाउ व्हाट इज द बाय, यहाँ पे क्या निकलेगा बाय प्रोडक्ट, इट इज HX. अभी सेकेंड रिएक्शन में, नाउ टेल मी, सी RNH2 दिस इज प्राइमरी अमाइन, इसमें पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव, RX में तो आपको पता चलता है कि R इज पॉजिटिव एंड X इज नेगेटिव. इन RNH2 विच इज द पॉजिटिव पार्ट एंड विच इज द नेगेटिव पार्ट? H plus and Yes, very good. H plus and the rest all part that is R and H minus will be negative. Try to understand, जब भी amines वाला compound, it is the positive part is H plus और जो बचा हुआ part रहेगा that will be your negative part. अमोनिया से ज्यादा strong nucleophile primary amine है. Why it is strong reagent? Because यहाँ पे alkyl group आ रहा है, it is electron donating group. तो ये इसको electron donate करेगा तो ये और ज्यादा strong बनेगा. Okay? तो अभी क्या होगा इसका प्रोडक्ट, ये रिएक्शन का, what is the product of this reaction? See, this R is as it is, ये R वैसा का वैसा है, N वैसा का वैसा है, right? Yes or no? yes. हाँ, one H is as it is और ये R आ गया, again plus HX बाहर निकलेगा. So what you are getting in this, you have got secondary amine. बराबर. H के साथ X कंबाइन हुआ, H के साथ X कंबाइन हुआ, यहाँ पे R आ गया, तो you have got secondary amine. Whether the reaction is going to stop here? No. One more hydrogen atom is there. Again, what is going to happen is secondary amine is going to react with another molecule of alkyl halide. और आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? अभी इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है, ये जो सेकेंडरी अमाइन मिला है उसमें पॉजिटिव क्या है? H और N. यस H प्लस, बाकी सब पार्ट नेगेटिव. तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये स्टेप में? H जो बाहर निकला इट इज गोइंग टू कंबाइन विद X और HX करके बाहर होगा. तो यहाँ पे आपको क्या मिला स्टूडेंट्स? दिस R, फर्स्ट वाला R इज एज इट इज, N वैसा का वैसा, यस आकांक्षा इज राइट, N वैसा का वैसा ही है. दिस R इज एज इट इज, ये जो R आ गया वो इसके साथ कंबाइन हो गया और आपको मिलेगा टर्शरी अमाइन. So when alkyl halide is reacting with ammonia, the first compound product which you are getting is primary amine. The reaction is not going to stop here unless and until all the hydrogen atoms are substituted by alkyl groups. तो क्या होगा? Secondary amine is going to react with another molecule of, इसमें प्लस माइनस आपको समझा, तो इसमें प्लस माइनस कौन है? H is प्लस, तो प्लस किसके साथ कंबाइन होता है? माइनस के साथ, तो ये इसके साथ कंबाइन होगा, बाकी ये जो पार्ट है वो R के साथ. तो RNHR, you are getting RNHR, that is secondary amine plus HX. Again in the third step, what is going to happen? Secondary amine is reacting with another molecule of alkyl halide. ये positive है, ये negative है. We know even in this H plus is positive. Similarly, H is going to combine with X, HX करके बाहर निकलेगा. और यहाँ पे क्या मिलेगा? R, N, R, और H की जगह पे कौन आएगा? कौन आएगा? Who is going to come in place of H? R. R. यहाँ पे R आ गया and you have got tertiary amine. Is the reaction clear? Yeah. इसमें कोई डाउट है ये रिएक्शन में स्टूडेंट्स? See, the name of the reaction is alkylation of amines.
or another name for the same reaction is ammonolysis. So sometimes they ask you the question, write a note on ammonolysis reaction. So ammonolysis is nothing but reaction of alkyl halide with ammonia at 373 Kelvin in a sealed tube to form primary amine. Since we are using alkyl halide in excess quantity, primary amine is going to react with another molecule of alkyl halide to give you secondary amine. फिर से क्या होगा? Secondary amine will react with another molecule of alkyl halide to give you tertiary amine. तो usually आपको ये देखना है कि एक्सेस किसके नीचे आता है. ओके, now tell me, अगर I want to stop my reaction at primary stage only, I don't want the product as secondary and tertiary, what changes can be made in the reaction? क्या change कर सकते हो? If I want to stop my reaction at primary, very good, you can take अगर अमोनिया को, दैट इज रिएजेंट, अगर आप एक्सेस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो और ये कम क्वांटिटी में है, तो ये तो रहेगा नहीं आगे रिएक्ट करने के लिए प्राइमरी अमाइन के साथ. तो अमोनिया के नीचे अगर एक्सेस क्वांटिटी दे आर लोग एक्सप्रेस करते हैं एक्सेस अमोनिया के नीचे, तो योर प्रोडक्ट विल बी ओनली प्राइमरी अमाइन. इफ एक्सेस कंडीशन इज गिवन बिलो अल्काइल हैलाइड, then you are getting three type of products, that is primary amine, secondary amine and tertiary amine. And ma'am, if excess condition is not given anywhere, then then it is understood कि it is only alkyl halide. वो ammonolysis reaction ही है और alkyl halide के नीचे ही मतलब alkyl halide is taken in excess quantity. जब ये अमोनिया के नीचे स्पेशली उन लोग मेंशन कर रहे हैं तो प्राइमरी अमाइन, दे विल मेंशन इट आउट कि अमोनिया के नीचे एक्सेस, तो प्राइमरी अमाइन के साथ. ओके, अगर किधर भी मेंशन ही नहीं किया है रिएक्शन में, इट इज अंडरस्टूड कि alkyl halide is taken in excess quantity and you'll be getting three products, different products, that is primary, necessary है क्या secondary मैम and कि tertiary. एक्सेस में लेना ही पड़ेगा अल्काइल हैलाइड? क्या बोल रहे हो? Ma'am, is it necessary to take alkyl halide in No, excess? it is not necessary to take. They are taking it in excess quantity, so they are getting three different kind of products. Primary भी मिल रहा है, secondary भी मिल रहा है, tertiary तो भी मैम मिल रहा अगर हम लोग को फर्स्ट स्टेप पे रिएक्शन रोकना है तो भी जरूरी है कि NH3 का एक्सेस में लेना पड़ेगा इन्हें? Yes, क्योंकि NH3 को एक्सेस में लेना पड़ेगा. सी ऐसा नहीं होता है ना कि अपन सिंगल एटम को रिएक्ट कर रहे हैं क्या, No, कि मैंने सिर्फ सिंगल एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड लिया और सिंगल एटम ऑफ अमोनिया, वैसे तो नहीं होता है ना. इसका भी तो 6.023 into 10 उतना सारा मॉलिक्यूल्स रहेगा रिएक्शंस में, तो इट मे हैपन कि वो रिएक्ट कर दे और आपको फर्दर प्रोडक्ट्स में. तो यूजुअली अगर आप इसको एक्सेस में लेते हो तो ये तो बहुत कम क्वांटिटी में रहेगा एज कंपेयर टू दिस, तो यहाँ पे ही प्रोडक्ट, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. ओके, we'll solve this reaction. Complete करो ये reaction and tell me what all products you are getting. What is the first product you have got in this reaction? क्या मिलेगा? कौन सा अमाइन मिला? Ethyl amine. Ethylamine. Yes, it is CH3, CH2, NH2. That is ethyl amine along with HBr. But it is understood I have not given excess condition below anything, तो alkyl halide is in excess. तो second reaction क्या होगा? Second step of the reaction, ethyl amine is going to react with another molecule of ammonia और आपको क्या मिलेगा product? मैम, ये सेकंड स्टेप में वो इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, RH के साथ. Yes, right. That is CH3, CH2Br. Yes.
What is the product you have got in the second step? See this CH3, CH2 is going to be as it is, N will be as it is, H will be as it is. One H will be substituted by alkyl group, that is CH2, CH3 along with HBr. So what is the name of this compound? क्या मिला आपको यहाँ पे? Yes, Akansha, it is right. It is diethylamine. IUPAC name? What is the IUPAC name of the compound? Yes, N-ethyl ethanamine. N बोलना है. Okay, and the last step of the reaction, this amine, that is CH3, CH2, NH, CH2, CH3 is going to react with another molecule of alkyl halide, that is CH2. और आपको final product क्या मिलेगा? Yes, what is the final product of the reaction? N, N. N comma N. Diethyl ethanamine. Very good. N comma N dimethyl ethanamine. Ethyl ethanamine, yes. तो CH3, CH2 is as it is, N भी as it is है. एक H फिर से दूसरे ethyl group से substitute हो गया. ये CH2, CH3 as it is है plus HBr. Very good. So you'll be getting N diethyl ethanamine. Common name is, what is the common name? Triethylamine. Amine. Yes, very good. You'll identify A, B, and C in the following reaction. Huh? Identify A, B, and C in the following reaction. What is A in this? A you have got? Ethyl chloride. Very good, ethyl chloride. See, it is a normal nucleophilic substitution reaction. The reagent is HCl and ZnCl2 is acting as a catalyst. ये दोनों की combination, what it is known as, HCl plus ZnCl2 is known as which reagent? कौन सा reagent है? Lucas reagent. Yes, it is Lucas reagent. HCl plus ZnCl2 combination is known as Lucas reagent. Okay, तो यहाँ पे it is a normal nucleophilic substitution. Aman spelling wrong है. CH3, CH2 and Cl, that is ethyl chloride. Okay, what is the second step? B क्या मिला आपको? Yes, Omkar, what is B in this reaction? I mean, it is the last product you have got. B या C है वो जो आपने आंसर दिया है वो. Yes, Akansha, you are right.
See, it is a normal nucleophilic substitution reactions. हाँ C बराबर है फिर Cl के जगह पे NH2 and because it is a nucleophilic तो CH3 is as it is, CH2 is as it is and NH2 आएगा plus HCl is your byproduct, right? इसमें positive part कौन सा है H plus and NH2 is the negative part. Cl negative है तो NH2 Cl की जगह पे आएगा and you'll be getting ethyl amine और ethanamine. Now I have given this compound. तो अभी आपको पता है क्या करना है. तो क्या होगा यहाँ पे सी पॉजिटिव पार्ट कौन सा है विच इज द पॉजिटिव पार्ट इन अल्काइल इथाइल आयोडाइड ethyl is the positive part, negative part is iodide. So final product will be CH3 will be as it is, right? CH2 will be ये वाला CH3 CH2 is as it is and H will be as it is और एक H की जगह पे कौन आएगा it will be ethyl group along with HI. So the compound which you will be getting is N-ethyl ethanamine. यहाँ पे मैंने अमोनिया के नीचे एक्सेस डाला है. एक्सेस क्या है मतलब अमोनिया एक्सेस में लिया गया है. यूजुअली अमोनोलिसिस हाँ अमोनिया एक्सेस में है बिकॉज अमोनोलिसिस में रिएक्शन यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है एक्सेस कंडीशन. ओके तो होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. अगर ऐसा काइंड ऑफ क्वेश्चन अल्कोहल टू अमाइंस कॉम्बिनेशन है तो पहला अल्कोहल को हमें सी अल्काइल हैलाइड जो है RX इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप बिकॉज अगर आपने अल्काइल हैलाइड का डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखा है तो उसमें n नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आप अल्काइल हैलाइड एज द स्टार्टिंग कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हो. अल्काइल हैलाइड टू अमोनिया जाना है तो डू द अमोनोलिसिस रिएक्शन व्हिच वी हैव सीन हियर. अल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल अगर जाना है यू कैन रिएक्ट इट विद अल्कली दैट इज NaOH KOH देन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल भी प्रिपेयर कर सकते हो. अल्काइल हैलाइड से आप अमीनो कंपाउंड्स भी प्रिपेयर कर सकते हो. साइनाइड भी आता है आइसोसाइनाइड भी आता है नाइट्रो ईथर ईस्टर मतलब n number of functional groups can be prepared from alkyl halide. तो जब भी कन्वर्जन्स होगा तो think from alkyl halide point of view. alkyl halide को पहले वो कंपाउंड में कन्वर्ट करो और फिर कन्वर्जन्स you can do. Okay. तो hope the monolysis reaction or alkylation reactions of amines is clear with you. Now second reaction which we are going to study ये is रिएक्शन नहीं समझा बिल्कुल भी. कौन सा ये वाला हाँ ये पूरा नहीं समझा कहाँ से कहाँ शुरू हुआ अंत हो गया. सी यहाँ पे मैंने क्या बोला था यू नीड टू आइडेंटिफाई A B and C इन द रिएक्शन. द क्वेश्चन वाज आइडेंटिफाई A B and C इन द फॉलोइंग रिएक्शन. ठीक है अभी यू ओनली टेल मी यहाँ पे CH3 CH2 OH में which is the negative part OH minus OH. okay minus this is the negative part मतलब rest all part is positive. Okay HCl में which is the negative part Cl minus. huh? Cl minus. Yes. Okay. See, ZnCl2 is acting as a just catalyst. It is not going to take part in the reaction. ये दोनों के combination को कैटलिस्ट नीचे रहता है क्या? नीचे ऐसे नहीं रहता. उन लोग HCl plus ZnCl2 भी कहाँ पे भी आप लिख सकते हो. यूजुअली एरो पे कैटलिस्ट दिया जाता है. रिएजेंट या तो प्लस में दिया जाता है या एरो पे दिया जाता है. रिएजेंट आप कहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो. प्लस HCl भी दे वुड हैव मेंशन इट आउट या एरो पे तो भी चलेगा. Okay, so ZnCl2 is acting as a catalyst. So it is a nucleophilic substitution reaction. मतलब माइनस की जगह पे माइनस आएगा तो OH की जगह पे कौन आएगा? Who is going to come in place of OH? Yes, OH की प्लेस answer. पे Cl. Cl आएगा क्योंकि it is a nucleophilic substitution reaction. Okay, OH निकल गया, Cl आ गया. ये OH H के साथ कंबाइन करके वाटर बाई प्रोडक्ट करके निकल गया. इतना समझा आपको ये? हाँ अभी सेकेंड स्टेप मैंने एरो पे क्या दिया था अमोनिया दिया दैट इज NH3. अभी इसमें विच इज द पॉजिटिव पार्ट एंड विच इज द नेगेटिव पार्ट इन NH3. अच्छा ओके हाँ NH3 में विच इज द पॉजिटिव पार्ट H plus और NH2 minus. यस
H plus is positive part and the negative part is NH2 minus. Okay, अभी आपको पता है Cl पे माइनस चार्ज है, तो Cl की जगह पे कौन आएगा? NH2 माइनस। NH2 माइनस, तो ये आ गया CH3 CH2 NH2 आ गया, और ये HCl करके बाहर निकलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट. ओके, बी समझा आपको? यस मिस, यस। हाँ, अभी बी में भी, अभी ये प्राइमरी अमाइन है. एज आई हैव सेड, इन प्राइमरी अमाइन द पॉजिटिव पार्ट इज H प्लस, रेस्ट ऑल पार्ट इज नेगेटिव. तो इसमें ये H प्लस इज एक्टिंग एज अ पॉजिटिव, राइट? यस। बाकी सब I नेगेटिव है, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो वैसे ही हो गया ना. H प्लस की जगह पे पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव ही आएगा, तो H की जगह पे, एक H की जगह पे कौन आ गया? CH2 5, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन होके माइनस H है, बाहर निकला. तो आपको मिला N इथाइल इथेनमाइन. क्लियर? ओके। हम्म. इसे ऐसा सॉल्व करना होगा या ABC आइडेंटिफाई करना होगा एग्जाम में? सॉल्व करके फिर आप आइडेंटिफाई करोगे ना. ओके। सॉल्व नहीं करके देना है, मतलब वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम, जस्ट वी नीड द आंसर. आइडेंटिफाई करना है कि A इज इथाइल क्लोराइड, B इज इथाइल अमाइन एंड C इज एन इथाइल इथेनमाइन. बट वर्ड्स में नहीं लिखना है, बिकॉज बोर्ड्स में सिर्फ आंसर, मतलब इफ आई एम राइटिंग, आई नो द स्ट्रक्चर इज, इफ आई एम सॉल्विंग इट इन रफ की इथाइल क्लोराइड, सिर्फ वर्डिंग्स में इथाइल क्लोराइड करके लिखना नहीं है. यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर एज वेल एज नेम इज एक्सपेक्टेड इन आइडेंटिफाई A एंड B. जब भी आइडेंटिफाई क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो along with name. So second, so we have completed with the first, that is alkylation of amines or ammonolysis. Second is reduction reaction. What do you mean by reduction reaction? Reduction मतलब क्या होता है? Addition of oxygen की addition of hydrogen. हाइड्रोजन. Addition of hydrogen, या उल्टा बोलना है तो removal of oxygen. क्या बोला मैम? वो ब्रेक हुआ. Oxidation क्या है? What is oxidation? Addition of ऑक्सीजन ऐड करके. Yeah, removal of hydrogen. So we are going to see the reduction reaction. In reduction reaction, we are going to study the reduction of 3 different compounds. Yes, starting from alkyl cyanide का पहला reduction देखेंगे. Then we are going to see the reduction of nitro compounds. And then the third reduction which we are going to study is reduction of amides, amide group. Alkyl cyanide, what is the general representation of alkyl cyanide? कैसे represent करते हो alkyl cyanide को? R-C. Yes, R-CN, और इसको ही अगर split up करना है तो it is R-C triple bond N. Okay, this is alkyl cyanide. Nitro compounds is R-NO2. Very good. And amide is amide R-. ONH2. Very good. R-C double bond O. See, amine और amine में, amide में N और D का डिफरेंस है. amine stands for RNH2. amide अगर they are telling तो RNH2 के between C double bond O भी आएगा. So this is amide. It is a derivative of carboxyl. OH की जगह पे NH2 आ गया. So it is amide. This is nitro compound. This is cyanide. Okay. So first we'll see the cyanide का reaction. मैम सब Reduction में of cyanide R आना compound. कंपलसरी R आएगा ही सब में? R stands for alkyl group ना रे, तो जनरल रिप्रेजेंट, सी अगर फंक्शनल ग्रुप पूछा साइनाइड में तभी आप R नहीं मेंशन करते हो. यू टेल द फंक्शनल ग्रुप इज CN डैश CN. नाइट्रो पूछा तो R. जनरल रिप्रेजेंटेशन, आप कोई भी रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हो तो RCN अल्काइल ग्रुप तो रहेगा ही ना, नहीं तो कार्बन का बैलेंस ही कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन तो नहीं कर सकता है, तो अल्काइल ग्रुप ही. Alkyl cyanide का what is the IUPAC name for alkyl cyanide? Alkyl nitrile. It is not alkyl, it is alkane nitrile. E will be replaced by word nitrile, so it is alkane nitrile. Okay, in some texts they are giving N
N दोनों को कंबाइन कर देते हैं, सो द स्पेलिंग इज ALKANIT, वैसे भी चलेगा, डबल N लिखते हो तो वैसे भी चलेगा. ओके, so we know the general representation of alkyl cyanide is RC triple bond N. See, if I want to reduce hydrogen introduce करना है, तो I need some reducing agent in this case. So the reducing agent which we are going to use is sodium, right, in presence of alcohol. It may, और ऐसे भी आ सकता है, sodium amalgam, that is sodium Hg in presence of, usually solvent जो use करते हैं ethyl alcohol because it is easily available, तो ethyl alcohol ही most of the case में as a solvent is been used. I know this is a reducing agent, तो ये क्या करेगा, it is going to reduce, right, किसको reduce करेगा, अभी ये C triple bond N है, एक bond अगर break होता है तो how many hydrogens will be needed for breaking one bond? रिडक्शन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो 2. तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे. ओके, यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन ऑफ साइनाइड ग्रुप होता है, तो यहाँ पे अनदर पाई बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, वन हाइड्रोजन विल बी टेकन बाय दिस कार्बन, अनदर बाय दिस कार्बन, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिग्मा तो ब्रेक नहीं होता, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द सिग्मा बॉन्ड. आपको फाइनल कंपाउंड क्या मिला, R इज एज इट इज, C के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स आ गया तो इट इज CH2, ट्रिपल बॉन्ड का बना सिंगल बॉन्ड एंड NH2, तो you have got the final product as primary amine. The reaction is clear. We have done the reduction reaction. See students, abhi my question is कि in presence of instead of using sodium in presence of ethanol, if I am using stannous chloride in this reaction, SnCl2 in presence of HCl आ गया, तो what is your final product? किसी को guess हो पा रहा है? प्रोडक्ट तो वही होगा ना, प्रोडक्ट क्यों चेंज होगा? क्योंकि मैंने reducing agent change किया है. वो जो स्टैनिस क्लोराइड है वो अलग टाइप ऑफ रिड्यूसिंग सर एजेंट हम है, वो यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप. हाइड्रोजन ये लोग को मिल रहा है वो इथाइल अल्कोहल ने प्रोवाइड करवाया है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो इट इज जस्ट एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ अमालगम, इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा. अच्छा, हाइड्रोजन नीचे वाला कर रहा है? हाँ, हाइड्रोजन कहाँ से मिल रहा है मैम उसको? अरे वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ, तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा ना. ओके. सी अभी स्टैनिस क्लोराइड का जो रिएक्शन था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैनिस? आकांक्षा, नो टर्शियरी अमाइन नहीं है. स्टैनिस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैनिस क्लोराइड, पहला वो बता. SnCl. Yes, SnCl2 in presence of HCl, तो ये वहां पे क्या मिलता है कंपाउंड? What is the final product of the आकांक्षा, अल्काइल क्लोराइड कहाँ से मिलेगा? साहिल, वेरी गुड, इट इज इमाइन कंपाउंड, बट इमाइन का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा? इमाइन का अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या मिलेगा? वेरी गुड साहिल, इट इज अल्डिहाइड. See students, try to understand that reaction we have seen in the aldehyde topic. Stannous chloride अगर use किया तो यहाँ पे partial hydrolysis होके, I will just write down this reaction here, but that is in topic ये वाला aldehyde, RC triple bond N. अभी instead of sodium amalgam अगर arrow पे आता है stannous chloride, that is SnCl2 in presence of HCl, तो पहला पार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बॉन्ड ब्रेक होगा पार्शियल, एक H पार्शियल हाइड्रोलिसिस C होगा, और यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड NH कंपाउंड मिलेगा. जब भी CH और NH में डबल बॉन्ड आता है we call it as imine compound. And as I have said earlier also, imine का जो भी रिएक्शंस रहेगा, अगर उसमें हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, तो ऑलवेज यू आर सपोज टू लॉजिक अप्लाई करो कि एक बॉन्ड ब्रेक करो, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन इसके पास दो, हाइड्रोजन इसके पास दो. दिस रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी सीन इन टॉपिक अल्डिहाइड. तो R is as it is, C is as it is, H is as it is, and double bond O.
The final product will be aldehyde. Do you remember the name of this reaction? It is one of the name reaction. It is one of the name reaction in aldehyde topic. Very good. It is Stephen's reduction reaction. Okay, it is Stephen's reduction reaction. अगर साइनाइड का रिडक्शन आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल करते हो तो द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज Mendius reduction reaction. See, now we are in the last topic of organic chemistry, that is amines, starting from halogen derivatives, alcohol, phenols and ethers, aldehyde, ketones, and carboxylic acid, and the last topic is amines. So what you are going to do is कि once you have completed with all the topics पढ़ाई करके तभी जाके एक प्रॉपर फुल स्केप पेपर या बुक बनाओ, उसमें सभी नेम रिएक्शंस एक साथ लिखो. लास्ट ईयर मेजॉरिटी क्वेश्चंस डायरेक्ट ही पूछा गया था. राइट अ नोट ऑन सैनमियर्स रिएक्शन. फिर ये अलग अलग स्टीफन, व्हाट इज स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, क्लियरली दे हैव मेंशन्ड द नेम्स ऑफ द रिएक्शन. तो फर्स्ट डू ऑर्गेनिक अगर स्टडी करना है प्रॉपर वे से तो पहला नेम रिएक्शंस एक साथ लिखो. अल्डिहाइड HDA से लेके, HDA में कौन सा है, सैनमियर्स है, वर्ट्स रिएक्शन है, वर्ट्स फिटिक, फिंकलस्टीन, वर्ट्स रिएक्शन है. तो ऐसे 5-6 रिएक्शन एक साथ. अल्कोहल में आई गेस नहीं है, फिनॉल में है, रीमर्टीमिन है, कॉलबेस, वो सब एक साथ लिखो. सब नेम रिएक्शंस अगर एक साथ लिखोगे तो आपको स्टडी करना बहुत इजी पड़ेगा. सेकेंडली, स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप. अगर आप फंक्शनल ग्रुप, अभी इफ आई एम टेकिंग अल्काइल हैलाइड्स का जितना रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड लो एज अ स्टार्टिंग कंपाउंड, उसका सभी रिएजेंट्स के साथ, NaOH के साथ वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके वो क्या प्रोडक्ट दे रहा है, वो पूरा रिएक्शंस एक साथ लिखो. गो विद द फंक्शनल ग्रुप्स, इवन दैट इज इजी. अभी आप साइनाइड अगर टॉपिक ले रहे हो रिएक्शन के लिए, तो साइनाइड का रिएक्शंस एक साथ पेपर में लिखो, सभी रिएक्शन, कि साइनाइड का इसके साथ रिडक्शन हुआ तो क्या मिलेगा, साइनाइड का इसके साथ रिडक्शन हुआ तो क्या हुआ. साइनाइड का अगर आप पार्शियल, कैन एनीवन टेल मी इफ यू आर डूइंग द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, व्हाट इज द product you are getting? If you are doing hydrolysis reaction of cyanide but partial, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट? ये ऑलरेडी हो चुका है, so I am asking you the question. Cyanide on partial hydrolysis gives you अमन, अल्कोहल नहीं मिलेगा. सी वहां पे N है ना, C और N है, तो वैसा टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पहले आकांक्षा, योर आंसर इज नॉट राइट. पार्शियल हाइड्रोलिसिस आई एम आस्किंग यू. ओके, साइनाइड ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स यू अमाइड, और अमाइड का अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. द रिएक्शन इज इन टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड. तो साइनाइड का अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड. पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो प्रोडक्ट विल बी अमाइड. सॉरी, साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा आपको कंपाउंड. एक साथ सभी साइनाइड का रिएक्शंस अगर आप लिखोगे ना, तो कोई भी साइनाइड का रिएक्शंस आएगा तो आपको एग्जाम में तुरंत याद आएगा, बिकॉज एक साथ आप लिखोगे तो कोरिलेट करना या पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा. सी सभी टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं है. साइनाइड का अभी इसमें HDA में वो रिएक्शन, सॉरी HDA नहीं, अल्डिहाइड कीटोन्स में ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन आ गया था. हाइड्रोलिसिस रिएक्शन उन्होंने दिया है कार्बोक्सिलिक टॉपिक में. रिडक्शन रिएक्शन दिया है अल्डिहाइड में एज वेल एज अमाइंस में. तो एक साथ लिखो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्टडी. ओके मैम आप कुछ तो एक PDF बना के देने वाली थी ना चार्ट का. हाँ, वो IUPAC का आई एम गोइंग टू गिव यू, दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. ओके सी, अभी यहाँ पे मैंने सोडियम इथेनॉल यूज किया था, तो इट इज मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन, बट इवन साइनाइड कैन बी रेड्यूस्ड.
ये जो reagent है ना, which I'm going to place on the arrow, it is very important. You'll tell me the name. What is the name of this reagent? Yes. सी अगर कुछ भी नहीं समझ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये ऐसा रेड्यूसिंग एजेंट है कि वो नॉन सेलेक्टिव है। अभी स्टैनस क्लोराइड कैसे सेलेक्टिव था, उसने क्या किया, साइनाइड को उसने अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, तो इट इज सेलेक्टिव क्योंकि वो साइनाइड ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाता है। वैसा लिथियम अगर एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप देखते हो ना, तो वो मेजोरिटी केस में हर एक फंक्शनल ग्रुप को मेजोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स को वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, साइनाइड और नाइट्रो कंपाउंड्स को अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट करता है। Okay, so this is a very important reducing agent. If they are placing lithium aluminum hydride on the arrow, even your final product in this reaction will be RCH2NH2, that is primary amine only. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आप यूज करते हो, या नॉर्मल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, दैट इज प्लैटिनम पैलाडियम भी साइनाइड को रिड्यूस कर पाता है, निकल भी रिड्यूस कर पाता है। तो इवन इफ दिस रिएजेंट इज कमिंग ऑन द एरो, योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी प्राइमरी अमाइन। कंप्लीट करो रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन का क्या मिला आपको प्रोडक्ट? ethylamine. यस, दैट इज CH3 CH2 NH2 सबको मिला इथाइलामाइन इज अ नॉर्मल रेड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड वन ट्राई करो, कन्वर्ट करो इथाइल साइनाइड टू प्रोपेन नाइट्राइल। मैम हाँ, मैम ये नाइट्राइल भी साइनाइड ही है ना? यस। साइनाइड। ओके, ये तीन ही करो। फर्स्ट वन कंप्लीट हुआ। ओके, ये भी ट्राई करो। चलो लेट्स सी आता है क्या। इवन थर्ड वन इज देयर।
What is the structure of ethyl cyanide? H3 बराबर what is the reagent you have used? Okay, प्रोपेन नाइट्राइल का Miss, स्ट्रक्चर क्या आएगा? मिस वो इथाइल साइनाइड में वो जो साइनाइड का कार्बन रहता है उसको काउंट नहीं करते हैं। इथाइल साइनाइड का इथाइल साइनाइड है ना, तो सी कॉमन नेम क्या आएगा? कॉमन नेम में साइनाइड ग्रुप आप बोल रहे हो, राइट? तो साइनाइड में ये वाला कार्बन चला गया, साइनाइड बोला ना आपने, इसलिए वो वाला कार्बन साइनाइड फंक्शनल ग्रुप में चला गया, तो जो बचा हुआ ग्रुप है दैट इज इथाइल साइनाइड, बराबर। बट अगर आप IUPAC नेम देखते हो तो IUPAC का रूल इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन, तो ये तीनों कार्बन इंक्लूड होगा, सो द नेम प्रोपेन नाइट्राइल। आई हैव रिटन द रॉन्ग क्वेश्चन एंड नो वन हैज टोल्ड मी आउट। इथाइल साइनाइड टू प्रोपेन नाइट्राइल होगा क्या रे? वही मिस लग रहा था कुछ हाँ अजीब। लग रहा था। वही मैम बोला था नाइट्राइल बोला मतलब नहीं। साइनाइड ही होता है करके मैंने पूछा। तो बोलना था ना कि क्वेश्चन रॉन्ग दिया आपने। चलो सॉल्व करो। सब जगह पे साइनाइड ग्रुप ही लिख दिया। Okay, do the conversions. Which reagent you're going to use to convert ethyl cyanide to amine? प्रोपेन वन अमाइन में कन्वर्ट करना है तो कौन सा? ओके, प्रोपेन वन अमाइन का स्ट्रक्चर क्या आएगा? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन वन अमाइन? CH3 CH2 CH2 yes, CH3 CH2 CH2 NH2, दिस इज प्रोपेन वन अमाइन। तो क्या रिएजेंट यूज होगा? reducing मिस वो अमाइन yes, आपने reducing. नाइट्राइल बोला था ना? हेलो अमन? मिस पहले नाइट्राइल था ना? हाँ नाइट्राइल था, बट आई वांट यू टू कन्वर्ट इट इनटू अमाइंस। ये सब ग्रुप्स को अमाइंस में कन्वर्ट करो। वो गलती से मैंने साइनाइड और पहले नाइट्राइल इट्स वन एंड हाँ। मिस पहले HCl यूज करेंगे। आप सेकेंड रिएक्शन बोल रहे हो? हाँ हाँ एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश विद सी। यहाँ पे आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लिखोगे तो भी चलेगा। इट कैन बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो या सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल भी चलेगा, या प्लैटिनम पैलेडियम लिखते हो तो भी चलेगा, या नॉर्मल निकल H2 लिखा तो भी चलेगा। Okay, so the marks is given for identifying the reducing agent because already they have given you the name ki ethyl cyanide and propane one amine. Now they have asked you to convert butanol alcohol to amine. तो क्या होगा conversion? Yes, क्लोराइड बनाएंगे। पहले ब्यूटेन वन ऑल को आप किस में कन्वर्ट करोगे? Yes, अमन HCl, पहला HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 होगा, राइट? और उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? क्लोराइड में। तो आपको ग्रुप क्या मिलेगा? OH के जगह पे Cl आएगा, तो CH3 CH2 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 Cl, अल्काइल क्लोराइड मिला। ओके, फिर उसका कन्वर्जन सेकेंड स्टेप। XSNH3। हाँ, अमोनिया के साथ एक्सेस में, वेरी गुड, अल्कोहलिक। तो आपको मिलेगा CH3 CH2 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 NH2। कैन यू टेल मी द सब्स्टिट्यूट मेथड? अगर ये
ये कितना स्टेप हो गया 1 and 2, अगर ये 3 स्टेप्स रिएक्शन होता तो क्या कर सकते थे? सब में थिंक फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि अल्कोहल को मैंने पहले अल्काइल क्लोराइड में रिएक्ट किया, फिर अल्काइल क्लोराइड को कौन से फंक्शनल ग्रुप में आप यूज कन्वर्ट कर सकते थे? एनीवन? साइनाइड में। एक मिनट। ओके सी, अभी यहाँ पे अगर आप कन्वर्जन्स देख रहे हो, वेदर दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। रॉन्ग है, क्योंकि ब्यूटेन 1 ऑल है एंड वो फॉर्मेशन क्या हो गया है, ब्यूटेन 1 अमाइन का ही हुआ है। मैंने क्या बोला, ब्यूटेन 1 ऑल टू पेंटेन 1 अमाइन, तो कार्बन एटम बढ़ रहा है, तो ये कन्वर्जन चलेगा क्या? No, ma'am. तो हाँ, तो व्हाट क्या यूज कर सकते थे इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट अमोनोलिसिस करने से पहले? व्हाट कन्वर्जन्स यू वुड हैव डन? मुझे कार्बन एटम इंक्रीज करना, राइट? ब्यूटेन मतलब कितना? यस अमन, इट इज राइट। ब्यूटेन मींस 4 कार्बन, पेंटेन मीन 5 कार्बन, तो आई नीड टू इंक्रीज द कार्बन एटम। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसको उसको किसके साथ, इंस्टेड ऑफ अमाइंस यू वुड हैव रिएक्टेड इट विद किसके साथ? साइनाइड। हाँ, ब्यूटाइल क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट करोगे? व्हाट इज द साइनाइड रिएजेंट? के साथ। बट साइनाइड में कौन सा रिएजेंट है? इट कैन बी NaCN और AgCN। KCN। AgCN नहीं यूज होगा बिकॉज AgCN आइसोसाइनाइड देता है, NC मिलेगा, आपको CN चाहिए, तो दिस विल बी CH3 CH2 CH2 CH2। नाउ इन प्लेस ऑफ Cl CN आ गया। अभी इसको क्या करोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? Yes, what you are going to do? इसका भी हम रिड्यूस। अभी नॉर्मल रेड्यूसिंग एजेंट, कोई भी रेड्यूसिंग एजेंट करो, इसको रेड्यूस करो, एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड विल बी CH3 CH2 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 again one more CH2 and NH2। is it clear? अगर number of carbon atom students अगर बढ़ रहा है कोई भी कन्वर्जन में, this was 4 carbon, this is 5 carbon, तो think from cyanide और Grignard point of view only। अभी आप अल्कोहल टू डायरेक्ट तो कन्वर्जन नहीं है, तो अल्कोहल को आपने पहले किस में कन्वर्ट किया? हैलाइड में। फिर ये Cl will be easily replaced by CN। सी ये कन्वर्जन ही है कि OH की जगह पे अगर आप साइनाइड NaCN को रिएक्ट करते हो तो ये हो जा, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो, फिर अल्काइल हैलाइड को NaCN और KCN के साथ कन्वर्ट करो, फिर आपको CN मिलेगा, फिर उसको रिडक्शन करो तो आपको NH2 ग्रुप मिलेगा। एंड द लास्ट आंसर एनीवन हैज डन? क्लोरोबेंजीन टू बेंजाइलमाइन। क्या किया? फर्स्ट स्टेप क्लोरोबेंजीन है, किसके साथ रिएक्ट किया? साइनाइड। किसके साथ? साइनाइड। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? कौन से केस में अमन NaOH बाय प्रोडक्ट है? प्रीवियस वाले में। हाँ, NaCl मिलेगा ना यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट विल बी NaCl। इज द स्क्रीन क्लियर? नो मैम। फोकस करो मिस, फोकस। Okay, fine. We'll see that reaction chlorobenzene to benzylamine in the next class. Okay. Not getting. Thank you so much.